नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्री डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी का अर्थ आपके साथ शेयर करूँ। सदर देन योगी सिक्स्थ, the 17-year-old young youth heard a voice in the wilderness of Bhutan forest, having lost his guru, crying at the sight of Guru Samadhis. The voice said, "Go north, go into Himalayas." It was difficult for the boy to leave the place of his guru, but there was no choice. He had to leave. He climbed up to Himalayas, traveling in the northern direction, and at one turn he beheld a large group of caves and yogis. They smilingly invited him and offered a cave. There he would continue his meditation practice, coming out of the cave, eating fruits, going into the cave, doing meditation. That would be the routine for decades and decades. Again, one day he was summoned and ordered to go back to India and teach, guide all the people. Again, reluctantly, the yogi had to climb down and reach the plains, touch the Rajas and Maharajas, touch the common people, traveling all over India, going to South India, entering Andhra Pradesh, traveling down by walk, sometimes naked, sometimes unfed, finally landed in Kurnool in the year 1976, the same year, fortunately, when Swash Patri also arrived in Kurnool. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। सदानंद योगी सिक्स्थ, the 17-year-old young youth heard a voice in the wilderness of Bhutan forest, having lost his guru, crying at the sight of Guru Samadhi. The voice said, "Go north, go into Himalayas." It was difficult for the boy to leave the place of his guru, but there was no choice. He had to leave. He climbed up to Himalayas, traveling in the northern direction, and at one turn, we held a large group of caves and yogis. They smilingly invited him and offered a cave. There he would continue the practice meditation, coming out of the cave, eating fruits, going into the cave, doing meditation. That would be the routine for decades and decades and decades. And one day he was summoned and ordered to go back to India and teach, guide all the people. Again, reluctantly, the yogi had to climb down and reach the plains, touch the Rajas and Maharajas, touch the common people, traveling all over India, going to South India, entering Andhra Pradesh, traveling down by walk, sometimes naked, sometimes unfed, finally landed in Kurnool in the year 1976, the same year, fortunately, when Subhash Patri also arrived in Kurnool. सदानंद योगी छठा अध्याय, इसके हिंदी के अर्थ को हम ध्यान से सुनते हैं। सदानंद योगी छठा अध्याय। 17 वर्षीय युवक ने भूटान के जंगल में अपने गुरु को खो देने के बाद गुरु की समाधि स्थल पर रोते हुए आवाज सुनी। आवाज ने कहा, उत्तर जाओ, हिमालय में जाओ। लड़के के लिए अपने गुरु का स्थान छोड़ना कठिन था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था, उसे छोड़ना पड़ा। वह उत्तर दिशा में यात्रा करते हुए हिमालय तक चढ़ गया और एक मोड़ पर उन्होंने गुफाओं और योगियों के एक बड़े समूह को देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए उन्हें आमंत्रित किया और एक गुफा की पेशकश की। वहां अपना ध्यान अभ्यास जारी रखा। गुफा से बाहर आना, फल खाना, गुफा में जाना, ध्यान करना, दशकों दशकों और दशकों तक यही दिनचर्या रही। फिर एक दिन उन्हें बुलाया गया और भारत वापस जाकर सभी लोगों को पढ़ाने, मार्गदर्शन करने का आदेश दिया गया। फिर अनिच्छा से योगी को नीचे उतरना पड़ा और मैदानों तक पहुंचना पड़ा, राजाओं महाराजाओं को छूना पड़ा। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। सदानंद योगी छठा अध्याय।
17 वर्षीय युवक भूटान के एक जंगल में अपने गुरु को खो देने के बाद गुरु की समाधि स्थल पर रोते हुए एक आवाज सुनी। यहाँ पर सदानंद योगी जी की युवावस्था के समय की स्थिति को पत्री सर यहाँ बता रहे हैं। आवाज ने कहा, उत्तर जाओ, हिमालय में जाओ। उस आवाज ने उन्हें सदानंद योगी जी को उत्तर जाओ और हिमालय में जाओ की आवाज सुनाई दी। लड़के लिए यहाँ पर सदानंद योगी जी के लिए गुरु का स्थान छोड़ना कठिन था, लेकिन कोई विकल्प नहीं था। उन्हें समाधि से छोड़ना पड़ा। उसके पास बैठ के जब रो रहे थे तो उन्हें वो समाधि से छोड़कर जाना पड़ा और उस आवाज के द्वारा जो निर्देशन था, उत्तर दिशा में यात्रा करते हुए हिमालय में चढ़ गए। और एक मोड़ पर उन्होंने योगियों और गुफाओं को देखा और उस जो योगी हैं जो उनको मुस्कुराते हुए आमंत्रित किया और एक गुफा की पेशकश की, जहां पर वो बैठकर अपना ध्यान अभ्यास करते थे। और गुफा में बाहर जाना और फल खाना, फिर गुफा में आ जाना और ध्यान करना, दशकों दशकों तक उनकी यही दिनचर्या रही। और फिर एक दिन उन्हें बुलाया गया। योगियों ने बोला कि आप भारत में वापस जाकर अभी लोगों को पढ़ाएं और मार्गदर्शन करें। और इन चीज का आदेश दिया गया कि लोगों को पढ़ाने और मार्गदर्शन करने का आदेश दिया। फिर अनिच्छा से सदानंद योगी जी ने नीचे उतरना पड़ा उन्हें और उन मैदानों में पर पहुंचना पड़ा। लोगों को, राजाओं और महाराजाओं को छूना पड़ा। उन लोगों को मिलकर ज्ञान बांटना पड़ा। और इसी अध्याय में सदानंद योगी जी के फिर कुछ हम उनके बारे जाने कि कैसे उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जिसके माध्यम से वह उत्तर दिशा में हिमालय की ओर चढ़ गए और वह योगियों के से मुलाकात हुई और वह गुफा में कई दशकों तक वहां पर ध्यान किया। दोस्तों, यहाँ पर सदानंद योगी जी के हमें जीवनी के बारे में कुछ पता लगा। तो दोस्तों, हमें भी पत्नी सर के बताए हुए ध्यान, स्वाध्याय, संजय संगति को अपने जीवन के अंदर अमल करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।